गैर पेपर प्रिपरेशन जितने भी एमसीक्यूज़ हैं इंटरनेशनल लॉ के मुतल्लिक सब के मुतल्लिक मैंने एक ये मुकम्मल वीडियो बना दी है। और आप सबसे गुजारिश है मेरे चैनल को शेयर ज़रूर कर दें। और ये जिस तरह जिस मीने से मैंने ये वीडियो बनाई है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दें। और आपके लिए बहुत इम्तिहानी नुक्ता नज़र से लॉ गेट के लिए बेहतरीन किस्म के एमसीक्यूज़ हैं, इसको ज़रूर पढ़ें। आपको इंशाल्लाह इस टॉपिक में आपको मार नहीं होती। सबसे पहला आ गया जी, इंटरनेशनल लॉ इज़ द बॉडी ऑफ द रूल विच रेगुलेट्स अ रिलेशन अमंग स्टेट्स। इंटरनेशनल लॉ इज़ द बॉडी ऑफ बोथ ए एंड बी। पढ़ ले, इंटरनेशनल लॉ एंड द लॉ ऑफ नेशन इज द नेम ऑफ द बॉडी ऑफ द रूल विच रेगुलेट्स द कंडक्ट ऑफ स्टेट्स। सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ मे बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरी। सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, all of the above. Legal sources of the sources which are binding and authorities. True, a formal source is the source which a rule of the law drive is a force and validity. True. उसके बाद में आ गया आर्टिकल 38 of the State of International Court of Justice played a very important role to the development of the source of international law. फिर अगर main source of the international are the both A and B. Article 38 of the Statute International Court of Justice recognize the international custom. International custom used to be regarded as the primary source of international law. True. 13 नंबर आ गया था एसेंशियल ऑफ द वेल इंटरनेशनल कस्टम बोथ ए एंड बी। 14 पढ़ लें, आर्टिकल 59 का जो है वो ट्रू है, यानी कि ऐसे ये मेक करता है। उसके बाद में पब्लिक इंटरनेशनल एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ आर द टू ब्रांचेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। बिल्कुल ठीक। प्रिंसिपल थ्योरीज रिगार्डिंग बेसिस ऑफ द इंटरनेशनल लॉ एंड द ऑल ऑफ द अबव तीनों ही हैं। नेचुरल लॉ थ्योरीज आल्सो नोन एज द फंडामेंटल राइट्स। द ओरिजिन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ द back to the 5th century. International law means that those laws govern to the legal relation between the nation. International law is the relation of the state with the states. Main exponents of the positive schools of thoughts are all of the above. Violation of the law does not mean that there is no law. True. Main exponent of the historical school of thoughts are the both A and the B. International law is the necessity for the peace of the security in the world. True. Main theories about the relationship between the international law and the municipal law are all of the above. International law and the municipal law have almost similar sources. So Soviet exports the sport ये पढ़ लें हम। Genocide Convention of the 1948 are imposed the certain duties directly upon the individual. True. Under international law, parties are treated as enemies of the mankind. True. General Assembly of the United Nations adopted the Genocide Convention 1948. Transformation of the international treaty into the nation legislation of furnish the extradition treaties made by the Great Britain. Jurisdiction is a vital and indeed certain features state sovereignty. 37 पे आ जाए, region of the jurisdiction was middle English jurisdiction from the angle French Latin. True. उसके बाद में आ गया जी 38 supremacy the constitution recognized organ the state of the making laws within the territories called legislative jurisdiction. ये सारे पढ़ लें, जब लेंथी है मैं छोड़ रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको पढ़ते जाएँ। उसके बाद में आ गया states may exercise jurisdiction over aliens who have committed an act aboard is called the protective principle. 45 आ गया, universal jurisdiction over piracy has been accepted under international law. 46 पढ़ लें, 47 भी पढ़ लें, 48 पढ़ लें कि state responsibility is the fundamental principle in international law. True. उसके बाद में 49 50 पढ़ लें, diplomatic protection as an elementary principle of international law. True. and law 52 आ गया, 53 आ गया कि the conduct of a person of a group person shall also be considered as an act of a state. 54 आ गया, injured state is a state is the right of the which is infringed by the act of another state. Yes, true. Some alternate names used for the term treaty as the all of the above. ये सब यूज होते हैं। 56 पहले 57 steps toward formation of the treaty all of the above. 58 है the issue of the force measures was raised by the France of the rainbow barrier arbitration 1990 में हुआ था। 59 पहले 60 अगर main object of the treaty is impose binding obligation on the state who are the parties to it. उसके बाद में kinds of the treaties are all of the above. Modes of the termination of the इंटरनेशनल ट्रीटीज़ आर ये सब हैं। उसके बाद में जनरल रूल ऑफ द इंटरनेशनल ये सारे हैं ऊपर वाले। लिटरल मीनिंग ऑफ द रिकग्निशन इज ऑल ऑफ द ये सारे हैं। इफ़ अ न्यू स्टेट एडमिटेड इन ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ द एन एडिक्शन ऑफ द रिकग्निशन ट्रू है। उसके बाद में सारे पढ़ लें। फिर 67 पे आ गया अकॉर्डिंग टू कैल्सन एसेंशियल ऑफ द स्टेटहुड आर द ऑल ऑफ द अबव। डिफैक्टो रिकग्निशन द रिकग्नाइज स्टेट या बोथ ए एंड बी हैं। इंडिविजुअल रिकग्निशन द रिकग्नाइज स्टेट बोथ ए एंड बी, ये दोनों पढ़ लें ए एंड बी। 70 पे अगर स्टेटलेसनेस इज़ ये एक स्टेट था जब बंदे को जो स्टेट के जिसके पास ना हो। उसके बाद में गवर्नमेंट 72 पे आ गया गवर्नमेंट इज़ द मशीनरी और एजेंसी।
ये भी पढ़ लें आप, इसका बोथ ए एंड बी है। उसके बाद में आ गया अंडर द 74 पे आ गया, 75 पे आ गया, अंडर इंटरनेशनल लॉ कॉन्फेडरेशन हैज़ द बोथ ए एंड बी नॉट इंटरनेशनली और इंटरनेशनल पर्सनैलिटी। अ फेडरल स्टेट इज़ द फॉर्म फाउंड बाय अ मर्जर ऑफ द टू आर द मोर सॉवरन स्टेट्स। ये भी पढ़ लें, ट्रू है। अंडर इंटरनेशनल लॉ द फेडरल स्टेट इज़ एन इंटरनेशनल पर्सन। उसके बाद में आ गया 80 पे आ गया न्यूट्रल स्टेट आर दो स्टेट्स हु डू नॉट सपोर्ट आइदर पार्टी ड्यूरिंग वार। ठीक हो गया। उसके बाद में आ गया कि कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ द स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आर एज अंडर ऑल ऑफ द अबव। वैकेंसीज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट फॉर द एक्ट ऑफ देयर अंडर। ये सारे पढ़ लें, बहुत आसान है। उसके बाद में द मोनरो डॉक्ट्राइन एक्सप्रेस 1823 प्रो क्लेम डैट द बोथ एंड भी पढ़ ले। डार्गो डॉक्ट्राइन वाज प्रोनाउंस्ड बाय द मास्टर डार्गो। पैक्टा सन सर्वेंटा इज द बोर्ड अ बेसिक प्रिंसिपल सिविल लॉ। उसके बाद में सारे पढ़ लें। 97 पे आ गया कि जो सॉवरन स्टेट आर इंटाइटल्ड टू बी द मेंबर ऑफ द फैमिली नेशन। येस, सॉवरेनिटी इज द रिलेशन बिटवीन द स्टेट सिग्निफाइज इंडिपेंडेंस एज द मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑल स्टेट्स आर इक्वल। सॉवरेनिटी इज द लीगल टर्म सेटिस्फाइंग द सुप्रीम पावर ऑफ बाय विच एनी स्टेट्स इज गवर्नड फॉर द पर्पज ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। स्टेट्स में बी डिवाइडेड इंटू द टू पार्ट्स। ठीक हो गया जी। अब 103 पे इंडिपेंडेंट स्टेट अनडाउटली हैव लिमिटेड कैपेसिटी बेयर एंड बी अ रियल यूनियन इज द एक्सिस्टेंस व्हेन द टू आर द मोर सॉवरन स्टेट्स हैव बीन इंटरनेशनल ट्रीटी। यस, ट्रू आ गया। 108 आ गया रूल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द प्रिजनर ऑफ द वार आर द गवर्नड बाय जिनेवा कन्वेंशन 1949 आ गया। हु हैव फॉलन इनटू द हैंड ऑफ द एनिमी शैल बी कॉल्ड द प्रिजनर ऑफ द वार ऑल ऑफ द अबव आ गया। 113 पे आ जाने इंपॉर्टेंट वार क्राइम्स आर द ऑल ऑफ द अबव। ये सारे वार क्राइम है। काइंड ऑफ द ब्लॉकेड आर द टू। उसके बाद में आ गया वेरियस फॉर्म्स ऑफ द ब्लॉकेड आर, ये सारी आ गई। हाइकिंग इज एंड वगैरह वगैरह पढ़ लें सारे, बहुत आसान। इसका स्क्रीन शॉट लेकर रख लें। किसी बात की समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं और हो जा रहे हैं। टोटल मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल आर 15, परमानेंट मेंबर हैंगे 5, नेम 2। अच्छा, ये सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल मेंबर 15, परमानेंट 5, 10 जो है वो हर 3 साल के लिए आते हैं। उसके बाद में आ गया नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो 10 है। परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ट्रू 5 है। ये सारे इसके मतलब क्वेश्चन है। परमानेंट ईच मेंबर ऑफ द स्टेट जनरल असम्बली हैज़ अ 1 वोट। जनरल सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूएन द ट्रू एलिमेंट्स 147 एलिमेंट्स ऑफ द इंटरवेंशन आर द वगैरह वगैरह पढ़ ले सारा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है ये सारे। एक दफ़ा आप नज़रों से गुजार लें, इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। मूड्स ऑफ अ लूजिंग टेरिटरी आर द ऑल ऑफ द अबव 163। 164 ऑन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू आर द मोर स्टेट्स नोन एज द इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। यस। अच्छा जी, 170 पे आ जाता वर्ल्ड एक्सट्राडिशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एक्स्ट एंड द ट्रीडियम विच मीन्स द डिलीवरी ऑफ क्रिमिनल्स। ठीक हो गया जी। उसके बाद में अजालम इज़ द राइट वे टू एवरी स्टेट टू रिफ्यूज़ द आ गया ये पढ़ लें। इसके बाद में आ गया जी अजालम हैज़ द 2 टाइप्स। अब लास्ट पे चलते हैं, 180 से 200 तक पढ़ते हैं। परमानेंट कोर्ट आर्बिट्रेशन वाज इस्टेब्लिश्ड 1800 कन्वेंशन के अंदर 1899 में। हिस्टोरिकल वाटर्स हैव द स्टेटस ऑफ द इंटरवेंशन वाटर ऑफ द इनोसेंट पैसेज डज नॉट एग्जिस्ट एज द राइट ऑफ द ट्रू। अब 190 पे आ जाते हैं। ऑल स्टेट्स ऑफ हैव असेस टू द हाई सीज ओनली फॉर द पीसफुल पर्पस। ठीक होगा जी। 195 पे आ जाते हैं। मेथड ऑफ द सेटलमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय द इस्लामिक लॉज आर द ऑल ऑफ द अबव। ये आखिरी पढ़ते हैं। हॉस्टाइल रिलेशंस आर द ऑल ऑफ द अबव। ब्लॉकेज, मिससेलेनिया और रिप्रेसल्स। तो ये आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा जी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें और इसको जो है वो ज़रूर तैयार करें। कोई जो मैंने इंपॉर्टेंट है मैंने पढ़ दी हैं, ज़्यादातर पढ़ दी हैं, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंटरनेशनल के मतलब जितने भी ये MCQs बनते थे मैंने इस वीडियो के अंदर दे दिए। अगर कोई नए सिलेबस के तहत लॉ गेट का आता है तो उसके इंशाल्लाह इस चैनल के इसके साथ मैं लिंक दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए कानून बोलता है।